Hello everyone, this is Akash Acharya and I have come up with this video of CLAT Notes 2.0 Logical Reasoning Sneak Peek. अब ये क्या है? स्पेसिफिकली पहले आपको ये सेशंस में क्या होने वाला है वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इन द वेरी फर्स्ट प्लेस लेट मी जस्ट clarify this thing कि when we talk about CLAT Notes 2.0 sneak peek, these videos or the videos in this particular series will specifically have those passages that we have kept in our notes. ठीक है. The basic funda is to give you an idea of how well we have curated and how well we have created that particular book, जिसके बारे में हम लोग बहुत समय से बात कर रहे हैं कि भाई CLAT के नोट्स जो है वो हम लोगों ने रिवैम्प किए हैं, तो रिवैम्प कंटेंट आपको बहुत हेल्प करेगा. सो सिमिलरली दिस सेशन विल हैव सम पैसेजेस फ्रॉम आर मॉड्यूल्स. ठीक है. और वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई ठीक है, इफ दीज पीपल आर टॉकिंग अबाउट मॉड्यूल्स और ये बोल रहे हैं कि इतने इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल्स, तो वो मॉड्यूल्स में हमारे पास स्पेसिफिकली काम करने के लिए क्या चीजें. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल today if we are talking about logical reasoning section, so in critical reasoning modules आपके पास there are 5 different books. ठीक है. In the very first book you will have statement based reasoning questions. In the second book you will have analytical reasoning. In the third book you will have paragraph based reasoning questions. In the fourth book you will have passages, assignments. So 25 odd assignments are there with 4 passages each, so 100 passages you will get there in the second book. Along with the detailed explanation of those passages and the questions over there. After that you will have one more book, and that is critical reasoning book 5. In that book you will have certain assignments. ठीक है. Certain passages will be there again, and there will be previous year papers of ALIT and CLAT both. ठीक है. तो लास्ट 3 और 4 इयर्स के पेपर्स जो है वो भी हम लोगों ने आपको दे दिए हैं, ताकि आप लोगों को, आप लोग भटकते हो कि भाई ये चीज कहां से मिलेगी, ये चीज कैसे होगी, ये कहां से आएगी, तो वो चीजें आप लोगों के लिए वहां पर है. नाउ हाउ आर वी गोइंग टू गो आफ्टर दीज थिंग्स हियर? In the very first place, I will come up with a video like this. ठीक है. Every time I come up with a video like this, I will solve one assignment, but there will be continuation. ठीक है. कैसा? We will solve these assignments here, and for example, we have taken up one assignment. So first assignment I have taken up today. ठीक है. There are 4 passages in that assignment. So first assignment, passage number 1 and 2 we will solve here, and the second part will be there in the form of a special class on Unacademy platform. तो आप क्या कर सकते हो? You can simply go out there, register yourself. ठीक है. Get registered. और उसके बाद आप for free स्पेशल क्लास के फॉर्म में जो बचा हुआ आपका पैसेजेस है उस असाइनमेंट के, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन पे जो सेशन होने वाला है उसको आप अटेंड कर सकते हो. आपको उसमें कोई पैसा वैसा नहीं देना है. आपको सिंपली जस्ट जाना है, अपना फोन नंबर डालना है, रजिस्टर करना है. ठीक है. ओटीपी आएगा, आपको रजिस्टर कर लेना है, और रजिस्टर करने के बाद यू कैन एक्सेस ऑल दोज फ्री क्लासेस. ठीक है. जिनको हम स्पेशल क्लासेस बोलते हैं यहाँ पर. सो आज हम लोगों के पास लॉजिकल रीजनिंग का एक असाइनमेंट है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स आवर असाइनमेंट. सो लॉजिकल रीजनिंग, this is assignment number 1. We have 4 passages here in this assignment. 2 passages we will solve here, and the rest of the 2 passages we will solve in the special class tomorrow at 10:30 a.m. So please make sure that you guys are there. This is gonna be a live class, 10:30 a.m. tomorrow. ठीक है. कल 10:30 a.m. आप लोगों को ये स्पेशल क्लास मिल जाएगी. ठीक है. स्पेशल क्लास मैंने आपको बोला सिर्फ रजिस्टर करना है, एंड यू कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर क्लास. देयर वी विल सॉल्व द रेस्ट ऑफ द 2 पैसेजेस जो कि इस पर्टिकुलर असाइनमेंट के थे. अभी जब हम CLAT नोट्स के इस बुक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि लॉजिकल रीजनिंग की पैसेज बेस्ड बुक 1 है, तो इसमें पैसेज नंबर 1 देखो, जितने भी पैसेजेस हैं वो सारे पैसेजेस इस चीज को दिमाग में रख के बनाए गए हैं दैट यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर CLAT, और CLAT के लिए यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो क्लोजेस्ट हो इन द डिफिकल्टी लेवल, और व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, और व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड लिमिट्स ऑफ द पैसेज, also the different sources that these people use to create actual क्वेश्चन पेपर. तो हमने सोर्सेस को भी उसी के अराउंड रिवॉल्व किया है जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका रीडिंग भी उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथन होगा, साथ ही साथ आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग भी उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथन होगी. ठीक है. आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी वहां पे बढ़ेगी. अब बहुत सारी चीजें आती है कि सर what is the difference when I go through a passage that is there in English language section and when I go through the same passage in critical reasoning section? How do we read? What is the difference in reading? Listen,
In both the cases, you need to comprehend, that is for sure. ठीक है? When the primary purpose is to comprehend the thing and to gauge the thought flow of the author, that remains same and constant in both the sections. वो दोनों ही सेक्शन में क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. वो दोनों ही सेक्शन में क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है. तो उसमें बहुत ज्यादा परेशानी हमें ये नहीं है कि हम इसको अलग तरीके से पढ़ेंगे, क्रिटिकल रीजनिंग है तो बहुत ही अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा. बट जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूं, before even starting reading that particular passage, just try to go through here and scan the types of questions that are there in the set. For example, if I've come up with this particular passage, this is the passage Ideologies Assault the Telegraph India 3rd of January 2024 का ये पैसेज है. तो जितने भी आपको पैसेज और कंटेंट मिल रहा है वो रिलेवेंट और रीसेंट है ना, लेटेस्ट है. तो आपको ये नहीं रहेगा कि मैंने उठाकर कोई पुराना 3-4 साल पुराना कोई पैसेज यहां पर दे दिया. नहीं, सारे पैसेजेस आपको नए मिलेंगे जिससे आपकी रीडिंग भी बहुत अच्छी होगी. अब देखो क्वेश्चन नंबर 1. When I say scan the questions, what do I actually mean? मैं क्या बोलना चाहता हूं? देखो, which of the following if true would most strengthen the author's argument about the ideological manipulation in humanities education? अब उसने क्या बोला है? If true would most strengthen. So if true would most strengthen का क्वेश्चन है ये. Moving further to the next one. Which of the following judgments most closely conforms to the principle stated in the passage regarding the role of humanities in the context of AI's influence on education? तो AI का जो influence है on education, उसमें role of humanities के बारे में जो भी बात करी है उसने, उससे उस judgments को closely confirm जो भी कर रहा होगा, उसको मुझे select करना है यहाँ पर. Moving further to the next one. Which of the following will act as an assumption for the author's viewpoint on the impact of social media on shaping the educational policy? तो social media का impact upon shaping the educational policy, उस चीज के लिए assumption क्या है author का? Third question. Fourth, how does the author suggest the discomfort of the privileged manifest in the context of humanity education? Next, fifth, which of the following, if true, would most weaken the author's argument about the enduring impact of humanities in ideological conflicts? Moving further to the next one, the last of this set, which of the following would support the author's conclusion that advancements in AI like ChatGPT are reshaping the educational landscape, particularly in the ह्यूमैनिटीज? तो आप देखोगे जिस तरीके का क्लैट में आपको पैटर्न आया क्वेश्चन का, उसके क्लोजेस्ट ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं. ठीक है, और यही पर्पस था हमारा इन सेशंस को लाने के पीछे. Now I'll show you the passage and we will read the passage. Once we are done with the passage, I will explain the main idea, the gist of the passage, and then we will move towards the questions. ठीक है, चलिए. Let's read this. I hope you're done with this. So this part of the passage discusses the role or the impact of the AI tools like ChatGPT and others in the formation or in the reshaping of educational landscape. ठीक है? Moving further to the next paragraph.
Okay, now we are moving towards the first question here. ठीक है, those जिन्होंने जो पढ़ नहीं पाए, यदि मैंने आपको कम टाइम दिया और जो लोग नहीं पढ़ पाए, तो आप कुछ नहीं करो, इट्स रियली सिंपल. आप सिर्फ पॉज बटन दबाओ, आप उस पूरे पैसेज को पढ़ लो, यू विल गेट टाइम, द रिक्वायर्ड टाइम, वॉट एवर टाइम यू रिक्वायर, आप उसमें उस पूरे पैसेज को पढ़ लो एंड देन मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस. ठीक है, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि बिल्कुल उसी पेस के साथ देखो जिस पेस के साथ मैं चल रहा हूं. यदि आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप ज्यादा टाइम लो, उसमें आप पॉज कर सकते हो वीडियो को और पॉज करके उस पूरे के पूरे पैसेज को पढ़ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने यहां पर देखा, अब आपको एनालाइज कैसे करना है, बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट सेशन लाइक दिस. सो एनालाइज कैसे करना है उसको, और हाउ टू कीप द इंफॉर्मेशन इन योर माइंड एंड हाउ टू स्पेसिफिकली पिक important pieces of information. That is a must learn thing for all the aspirants, because this is where people get stuck and they feel like they've read the passage, but the point is, when it comes to comprehending the things and comprehending the main ideas from there, वो चीज हम मिस कर देते हैं. वी गेट द फील कि ओके हम लोगों ने पढ़ लिया है, बट एक्चुअली जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड चीजें हैं वहां पर हम लोग थोड़े से फंस जाते हैं. तो वो नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एक ही पैसेज मैं आपको ऐसे करके बताऊंगा, अदरवाइज मैं आपको सिर्फ उसका मेन आइडिया बता के और आगे चलता रहूंगा. ठीक है, यदि आपको लगता है कि आपको पैसेज बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो. नाउ इन्होंने बोला, डोनाल्ड ट्रम्प्स प्रपोजल टू एस्टैब्लिश एन, जस्ट अ मिनट, हाँ, yeah, Donald Trump's proposal to establish an American academy aimed at countering woke universities highlights the deep ideological conflicts permitting education. His plan to fund this institution through taxes on large university endowments reflects a broader struggle around educational curricula and campus activism. ठीक है? Now, what is the point? They are talking about some policy and some university or some entity, educational entity, जिसको किसी एक दूसरी एंटिटी को काउंटर करने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प के एग्जाम्पल के थ्रू ऑथर ने यहां पर डिस्कस किया है. तो ये एजुकेशनल रिस्पेक्ट में जो चीज हो रही है उस बारे में बात कर रहे हैं. तो आपको कुछ नहीं करना होता. इफ यू हैव स्टार्टेड रीडिंग अ पर्टिकुलर पैसेज, यू मस्ट कीप इन योर माइंड हाउ आर यू गोइंग टू गेज दिस व्हाट एंड हाउ, कि भाई किस बारे में बात हुई है और किस तरीके से बात हुई है. तो भाई यहां पर एजुकेशन से रिलेटेड बात हुई है, ये हमें अभी समझ में आया, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना पड़ता है, आराम से पढ़ते चलो. This battle of ideologies, particularly in the humanities and social sciences, mirrors a global trend where identity and ideology overshadow hard data and science. अब उन्होंने क्या बोला है, अब उसी को जनरलाइज करके उन्होंने ये बोल दिया कि in the world, if you will have a look at the global scenario, उस global scenario में भी this is happening. क्या कि जो स्पेसिफिकली ये बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज है, ये बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज ओवरशैडो कर रही है किस चीज को, साइंस को ओवरशैडो कर रही है. ठीक है, इन द मिस्ट ऑफ दिस आइडियोलॉजिकल क्लैश, advancements in AI like ChatGPT are reshaping the educational landscape. Teachers are grappling with AI assisted student work, raising questions about the future of the humanities. The role of these disciplines is increasingly critical in a world where AI may dominate communication, but human subjectivities continue to define our private and public selves and the legacies we pass on through education and scholarship. My experience in India and the United States have revealed the fluidity of identity in humanities research and teaching. In the US, debates around the humanities have evolved from cultural wars to a backlash against critical race theory and multiculturalism. The influence of social media in shaping educational policy is evident, as is the legislative pushback against progressive academic discipline. अब देखो उसने क्या बात करी, उसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस करने के बाद उसको जनरलाइज करके ये बोला कि ये जो आइडियोलॉजिकल क्लैश चल रहा है, ये आइडियोलॉजिकल क्लैश के कारण क्या हो रहा है, जो साइंस है ये आइडियोलॉजिकल क्लैश उसको क्या कर रहा है, ओवरशैडो कर रहा है. और उसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने यहाँ पर यूएस के एग्जाम्पल को बता दिया. अब जब आप इंडिया के बारे में बात करो तो कंपैरिजन कर रहे हैं वो, अब इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, पहले यूएस के बारे में बात करी, इंडिया के बारे में क्या बोल रहे हैं. द गवर्नमेंट्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कमिटी
टू विच आई कंट्रीब्यूटेड इनिशियली एम्ब्रेस्ड इंटरडिसिप्लिनरी लिबरल आर्ट्स। तो वो बोल रहा है कि इनिशियली ये चीज था कि इंटरडिसिप्लिनरी लिबरल आर्ट्स जो थे वहां पर उस चीज को तवज्जो दी गई थी, वो चीज वहां पर थी, बट लेटर what happened? However, the final policy reflected a strong influence of high Sanskritic Hinduism, revealing the ideological manipulation of humanities education. अब उसने क्या बोला, किसी एक पर्टिकुलर चीज को आपने वहां पर डोमिनेट कर दिया, यदि आपने डोमिनेट कर दिया उस चीज को, so that is something which is considered as ideological manipulation of ह्यूमैनिटीज। वो बोल रहा है कि ये चीज ओवरशैडो कर रही है साइंस को, तो बाद में उसने उसी के एग्जांपल्स दिए हैं। तो यदि आपको एक चीज समझ में आ जाती है, आप उससे रिलेट करके बाकी चीजों को भी कंप्रीहेंड कर सकते हो। डजंट मैटर कि आपको पूरा समझ में नहीं आया। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉजिकल रीजनिंग बिकॉज इन इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन यू माइट गेट सम स्पेसिफिक फैक्ट बेस्ड और सम वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस हियर, तो उसमें आपको थोड़ा सा पेस स्लो करके और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। बट हाँ, यदि आपको यहां पर थॉट समझ में आ रहा है तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए इतना काफी है। This saffron washing of multidisciplinary content underscores the power of humanities in shaping ideological narratives. अब आपने एक चीज को डोमिनेट कर दिया तो अब उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बची, तो वो यही बोल रहा है कि इससे एक चीज में इंडरेंस क्रिएट होता है, एंड दैट इज कि ह्यूमैनिटीज का जो रोल है इन शेपिंग आइडियोलॉजिकल नैरेटिव्स, वहां पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। द ह्यूमैनिटीज एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री एंड रेटोरिक इज बोथ पावरफुल एंड पेरिलियस. Evident in the ideological battles over curriculum in both the US and India, the discomfort of the privileged often manifests as denial, facilitated by the very disciplines they challenge. The humanities thus play a crucial role in constructing and deconstructing meaning, symbol and identity. अब ये role of humanities बताया कि भाई यहाँ importance है उसका. The importance of the humanities is paradoxically highlighted by their exploitation in ideological conflicts. तो again impact of ideological clashes there on humanities, ठीक है. While economics and technology may have marginalized these disciplines, they could regain certain centrality of AI if AI takes over routine tasks, prompting a shift towards more creative and imaginative thinking. अब वो बोल रहा है कि जो आपके अलग बेसिक साइंसेस है, यदि उस चीजों को AI हैंडल करने लग गया तो फिर रिक्वायरमेंट होगी कि अब मैं और ज्यादा लिबरल होके सोचूं, तभी क्रिएटिविटी जो है वहां पर चीजें जाएंगी, सेरेंडिपिटी की तरफ चीजें जाएंगी, तो वो चीज यहां से बढ़ेगी, ठीक है. However, the enduring impact of the humanities lies in their ideological resonance, audible across the political spectrum. The future of humanities is fraught with potential, both inspiring and intimidating. It falls upon us as humanists to navigate this complex landscape and determine the role these disciplines will play in shaping understanding, identity and ideology in an increasingly AI-influenced world. ठीक है, कब लिया हमने ideologies assault, इस ये एक टॉपिक है, इसका टेलीग्राफ से लिया हुआ है, 3 जनवरी का जो टेलीग्राफ का ये आर्टिकल है वो है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, आप लोगों को सॉल्व करना है साथ में, ठीक है. आप पॉज कर सकते हो यहीं पर बिकॉज आई विल हैव टू मेंटेन द पेस. यहीं पॉज कर लो, पॉज करके आप उसको सॉल्व कर लो एंड आई विल सॉल्व इट. सो जब आपने सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया, आप उसको प्ले कर सकते हो वापस से, ठीक है. फर्स्ट, which of the following, if true, would most strengthen the author's argument about the ideological manipulation in humanities education? तो ideological manipulation in humanities, इस पर ऑथर ने जो भी बोला है, तो ये तो इसमें पॉजिटिव कोरिलेशनशिप निकाल रहा है कि हाँ इस चीज से तो इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, उसको स्ट्रेंथन करना है. ए बोलता है ह्यूमैनिटीज एजुकेशन ऑफन रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड मेंटेन स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी. यू टेल मी वन थिंग, यदि वो न्यूट्रलिटी होती तो फिर कोई प्रॉब्लम जाती ही नहीं, तो कोई इंपैक्ट ही जनरेट नहीं होता. तो हम ये नहीं बोल सकते कि इट रिमेन्स अनअफेक्टेड. दैट इज व्हाई इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के कारण ए एलिमिनेट होता है. Now, if you talk about B Bombay, B reads, the National Education Policy NEP Committee in India initially supported interdisciplinary liberal arts, but was later influenced by high Sanskritic Hinduism. अब आपने क्या बोल दिया कि आप आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस वहां पर है, ठीक है, आप किसी एक चीज को डोमिनेंट बता सकते हो, बता रहे हो, तो यहां से B जो है वो स्ट्रेंथन करता है. See, technology and economics have always been the primary focus of educational policies, overshadowing the humanities. टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स का ये रोल नहीं था, उसने ये बिल्कुल नहीं बोला. उसने बोला कि एआई यदि ये करने लग जाएगा तो फिर ह्यूमैनिटीज में थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा और क्रिएटिविटी का रिक्वायरमेंट आएगा. दैट्स व्हाई सी इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट.
डी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव नो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट. दे आर सेइंग कि नो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट, बट वहां पर इंपैक्ट है. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज बी, बॉम्बे. आई होप यू गॉट दिस वन करेक्ट. Moving further to the next one, question number 2. Which of the following judgments most closely conforms to the principle stated in the passage regarding the role of humanities in the context of AI's influence of education? Role of humanities in the context of AI's influence on education. आते हैं. Second, the humanities are becoming less relevant in AI dominated world due to their lack of practical application. Now, do you feel that this explanation is correct, or you have got some evidence to support this? No. That's why A gets eliminated. B, as AI takes over routine tasks, the humanities will regain importance in fostering creative and imaginative thinking. Again, eventually आपके पास क्या करेक्ट आंसर ऑप्शंस आ रहे हैं जिनका एविडेंस आप वहां से हंट कर पाते हो. तो अगेन, इफ योर रेफरेंस इज करेक्ट, if you are referring to the correct part, if you are hunting for the justification of your selecting or eliminating a particular choice from the passage also, only from within the passage only, that is when you maintain accuracy, and with time you will be able to do this thing quickly, and that is what is required to crack the examination, nothing else. बहुत ज्यादा उसको complicated नहीं करते. तो ये चीज का evidence हमारे पास है, we can support this. तो यहां पर ये correct हुआ. C, AI technology will eventually replace the need for humanities in educational curricula. You tell me one thing, क्या ये warranted है? पहले तो ये बता दो. चलो ठीक है, उसने बोला most closely conforms. यदि if true बोलता तो भी मैं कंसीडर करने की सोचता, इसलिए यहां से C eliminate हो जाता है क्योंकि ये unwarranted है. D, the role of humanities in education has remained static and unchanging. ये बोल रहा है कि static और unchanging है ना, उसके ऊपर इंपैक्ट क्रिएटेड है. दैट्स व्हाई डी आल्सो गेट्स एलिमिनेटेड, एंड द आंसर फॉर द सेकंड वन अगेन इज बी. क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. अगेन मैंने आप लोगों को बोला यू कैन जस्ट tap on the pause button, you can pause the video, you can solve the question, and then you can again resume the video so that you can work upon the explanation of it and you can check your answer as well. ठीक है, चलो third one. Which of the following will act as an assumption for the author's viewpoint on the impact of social media on shaping educational policy? तो assumption क्या है, किस चीज के relevant वो पूछ रहा है कि the impact of social media on shaping educational policy. ये देखते हैं. Social media platforms are predominantly used for entertainment purposes and have little influence on serious matters like educational policy. But उसने तो वहां पर इन्फ्लुएंस को डिस्कस किया है, तो ये तो लिटिल इन्फ्लुएंस के बेसिस पर ही एलिमिनेट हो जाता है. बी, द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड ऑन सोशल मीडिया आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वाइडर पब्लिक ओपिनियन एंड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस पॉलिसी डिसीजंस. अब ये बोल रहे हैं सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस, ये लिटिल इन्फ्लुएंस के कारण एलिमिनेट हुआ था और ये सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के कारण ही सेलेक्ट किया जा सकता है. सी, educational policies are solely based on academic research and are impervious to influence from social media. अब वो बोल रहा है कि भाई impervious है, ये इस पे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है मतलब फिर गया. देखो बड़ा इजी हो जाता है यदि आप मेन थॉट ले लेते हो तो. डी, सोशल मीडिया हैज अ मोर सब्सटेंशियल इंपैक्ट ऑन कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग देन ऑन एजुकेशनल पॉलिसी. तो ये तो कंपैरेटिव स्टडी करने लगा. क्या इस कंपैरिजन के बाद मैं ये बोल सकता हूं इस पे ज्यादा होता है इस पे कम होता है? अगेन एविडेंस यू वोंट गेट. करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर थर्ड वन अगेन इज बी, बॉम्बे. मूव फर्दर. ये मत सोचना सारे भी हैं हो भी सकते हैं, ये क्लैट में भी हो सकता है. फोर्थ, how does the author suggest the discomfort of the privileged manifest in the context of humanities education? How does the author suggest the discomfort of the privileged manifest in the context of humanities education? A, by actively promoting a more diverse and inclusive curriculum in humanities education through denial and resistance facilitated by the discipline they challenge. Up simply, if you will go back to the passage, you will find it out written over here. The discomfort of the privileged often manifests as denial facilitated by the very disciplines they
challenge. So you may also get fact-based question there in logical reasoning section. So you should not always feel like कि नहीं बहुत ज्यादा ही सोचना पड़ेगा. जरूरी नहीं है कि हमेशा बहुत ज्यादा सोचना पड़े. कई बार वो चीजें सिंपल होती हैं और इसीलिए हम वहां पर मिस्टेक कर जाते हैं. तो इसमें कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. आप बहुत न्यूट्रल होकर यदि क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, you'll be able to crack all these questions easily. हम 2024 का एग्जाम एनालिसिस यदि आप कहीं देखोगे या मैं आपके साथ स्पेशल क्लास में उस चीज को डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, सारे क्वेश्चंस ट्रिकी नहीं होते हैं. सारे क्वेश्चंस में उतना सोचने की जरूरत नहीं होती है. कुछ जगहों पर यस सोचने की जरूरत होती है, मगर आपको उसको उस पर्सपेक्टिव से देखना जरूरी है. मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट वन. Which of the following, if true, would most weaken the author's argument about the enduring impact of humanities in ideological conflicts? अब एक चीज बताओ, अब यदि मुझे वीकन करना है तो मुझे जो पैसेज में लिखा है, जो ऑथर का व्यू पॉइंट है या उसका जो मेन पॉइंट है, मुझे उसके अपोजिट बात करनी पड़ेगी. ऑथर ने क्या बात करी कि इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, अब मुझे क्या देखना पड़ेगा, इसके अपोजिट. देखते हैं. फिफ्थ, द ह्यूमैनिटीज हैव कंसिस्टेंटली बीन सेंट्रल to shaping and understanding cultural and ideological narratives throughout history. Second, इसने ए ने क्या बोला? The humanities have consistently been central to shaping and understanding cultural and ideological narratives throughout history. B, there is increasing evidence that economics and technology are losing their influence over educational curricula in favor ऑफ द ह्यूमैनिटीज. यू टेल मी वन थिंग. वो तो क्या बोल रहे हैं कि ओवरशैडो कर रहे हो. प्लस उसने ये बोला कि यदि एआई टेक्नोलॉजी में काम करने लग जाएगी, एआई इकोनॉमिक्स में काम करने लग जाएगी, तब ये रिक्वायरमेंट आएगा कि लोग क्रिएटिविटी के साथ सोचें. मतलब अभी क्या हो रहा है, तो ये अपोजिट हुआ ना. तो अभी यदि ये बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी आर लूजिंग देयर इन्फ्लुएंस, ना दे आर नॉट लूजिंग देयर इन्फ्लुएंस, दे हैव देयर इन्फ्लुएंस, और उसके कारण ह्यूमैनिटीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है. इसीलिए आप यहां पर इसको अभी सॉफ्ट कॉल जैसा कुछ ले सकते हो. द इंपैक्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड एजुकेशन इज द इंपैक्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड एजुकेशन इज डिमिनिशिंग ड्यू टू द ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन स्टेम सब्जेक्ट्स इन द ग्लोबल एजुकेशनल लैंडस्केप. अब देखो यहां से ए तो एलिमिनेट हो जाता है, बी और सी अभी मैंने सॉफ्ट कॉल पे रखा है. डी, recent educational reforms in various countries have been largely influenced by humanitarian and ethical considerations rather than economic or technological factors. आपको पता क्या करना था? वीकन. हर वो चीज जो कि irrelevant हो वो भी आप सेलेक्ट कर जाते हो कई बार वीकनिंग दी आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चंस में. नहीं, वो नहीं करना होता. हाँ, कभी वो क्वेश्चन स्टेम ऐसा है कि विच वन आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस डज नॉट स्ट्रेंथन और डज नॉट वीकन, वहां पर आप बोल सकते हो कि हाँ इररिलेवेंट, बाकी सारी चॉइसेस गलत हैं और एक इररिलेवेंट है, इसलिए मैंने उसको आंसर मार्क कर दिया. बट यहां पर ये नहीं हो सकता. Whenever you get stuck in between two choices, you need to work upon the difference in between those two choices. कि भाई इनके बीच में डिफरेंस क्या है. क्योंकि जब आपको समझ में आएगा कि B is talking about this idea and C is talking about this idea, now which one is closer to what is discussed in the passage? That is when you can get the answer correctly. Okay. Now B, there is increasing evidence that economics and technology are losing their influence over educational curricula in the favor of the humanities. Humanities के favor में ये ऐसा जा रहा है. C बोलता है the impact of humanities and education is diminishing due to the growing emphasis on STEM subjects in the global educational landscape. अब एक चीज समझो, उसने वहां पर importance of humanities के बारे में बात करी है, यस और नो. उसके ऊपर इंपैक्ट के बारे में बात करिए, यस और नो. इंपैक्ट के बारे में बात करता हूं, ऑप्शन कौन सा है? स्ट्रेट अवे. सिर्फ इतना सा सोच के आंसर आ जाता है, डीप में जाने की जरूरत हर बार नहीं होती. लास्ट, sixth, which of the following would support the author's conclusion that advancements in AI like ChatGPT are reshaping the educational landscape particularly in the humanities? इसको सपोर्ट करना है कि हाँ रीशेप करने में इनका इंपैक्ट है. ए बोलता है many educators believe that traditional teaching methods are sufficient and see no need for integrating AI into the curriculum. वो तो बोल रहा है कि जरूरत ही नहीं लोगों को, तो यहां से ये एलिमिनेट हो जाता है. भाई जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है, लोग कर रहे हैं वो. There has been a significant increase in the use of AI tools for research and teaching in humanities courses at universities. If you select this, this will support the argument that yes, it creates or it has some impact. So B Bombay is better as of now. ठीक है. C,
AI advancements have primarily been influential in scientific and technological or technical fields with little impact on humanities education, but there is impact. So C Calcutta gets eliminated. D, students have shown a preference for courses that focus solely on humanistic perspective without the influence of AI. Again, this statement also includes this expression where they are saying कि नहीं, AI का impact वहां पर नहीं है. So this gets eliminated. Answer is B, Bombay. So all together यदि आप सारे के सारे passages को देखो तो first is B, second is B, third is B, fourth is B, fifth one is the only question where we got C Calcutta and sixth one is again B. ठीक है. Now जैसा मैंने आपको बोला कि ये जितने भी सेशंस स्नीक पीक वाले सेशंस आएंगे, इसमें आई विल गिव यू एन एग्जांपल, देन वी विल सॉल्व द कंप्लीट assignment for sure, but we will solve that complete assignment there in the special class. So this is it. Now after that, for your reference, because if you come tomorrow in the special class, I want you guys to attend this in the very first place. So I don't think I am obstructing your vision. You can just pause the video and read this. So ये पाकिस्तान मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड या सोवियत से रिलेटेड, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, तो किस तरीके से ये कोई पॉलिटिक्स की तरफ जाता हुआ है. ठीक है, एक पैसेज है. क्या सोर्स? चिल इन दी वार्मथ. ठीक है. द टेलीग्राफ, अगेन 3rd of January 2024, टेलीग्राफ का ही एक आर्टिकल है. अगेन यू कैन रीड दिस वन. सो आप ये पढ़ सकते हो पैसेज पढ़ने के बाद आई विल शो यू द क्वेश्चंस आल्सो, सो दैट यू कैन जस्ट कम अप विद योर आंसर्स, एंड टुमारो वी विल डिस्कस दिस देयर इन द स्पेशल क्लास. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल स्ट्रेंथन द आइडिया गिवन इन द फर्स्ट पैराग्राफ रिगार्डिंग द पाकिस्तान्स क्वेस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन अफगानिस्तान. ये फर्स्ट पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आंसर उसी तरीके से निकालेंगे. Which of the following judgments most closely conform to the principle stated above regarding the relationship between the तालिबान एंड टीटीपी? भाई तालिबान और टीटीपी के बीच में जो रिलेशनशिप है उससे रिलेट करता हुआ ऑप्शन क्या है, ये आपको बताना है इन द सेकंड क्वेश्चन. ठीक है. नाउ मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, बेस्ड ऑन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट नेसेसरीली बी ट्रू रिगार्डिंग पाकिस्तान पॉलिसी टुवर्ड्स अफगान रिफ्यूजीज? तो भाई क्या करेक्ट होगा इस कंटेक्स्ट पे, ये बताना है. यू हैव गॉट द ऑप्शंस हियर एज वेल. फोर्थ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू would most weaken the author's argument about the implication of Pakistan's policy on Afghanistan's economy? किस चीज के लिए पूछा है? पाकिस्तान पॉलिसी ऑन अफगानिस्तान इकोनॉमी. तो इस रेफरेंस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट वन, फिफ्थ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग implicit assumptions can be logically deduced from the author's portrayal of Islamabad's stance towards the Taliban-led government in Afghanistan? तो भाई वहां पर क्या हो रहा है ये बताना है, उसके लिए क्या assumption है ये बताना है. फिफ्थ क्वेश्चन ये हुआ आपका. सिक्स्थ, how does the author suggest the relationship between Pakistan's strategic vision and the reality of the Taliban's regime in Afghanistan has evolved? So this seems to be a fact-based question जिसको डायरेक्टली आप वहां से रेफरेंस लेके सॉल्व कर सकते हो. तो ये आपके पास सारे के सारे 6 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बताएं. सॉल्यूशन अगेन लेट मी टेल यू, टुमारो 10:30 AM at an academy platform in the form of a special class, and this class is gonna be free for all. ये सब के लिए फ्री होने वाला है. ठीक है. Now I have some information for you guys. I hope to see you guys tomorrow at 10:30 AM sharp, है ना, there in the special class. Arambh is one such program that we have launched, and because of this you are eligible to get 50% off on all the modes of subscription. So 50% off on all the CLAT Plus subscriptions. So these are the final prices जो आपको देना पड़ेगा. बाकी सारी चीज़ों के लिए देखो 24 मंथ्स के लिए भी 44,000 यानी 45,000 में आपको मिल रहा है. बहुत 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 ही अफोर्डेबल है.
50% ऑफ आपके सिर्फ प्लस पर नहीं, अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे भी चल रहा है। सो 9 मंथ्स के लिए ये मिल रहा है, 12 मंथ्स ये मिल रहा है। फॉर 1 ईयर आई मस्ट सजेस्ट कि आप 12 मंथ्स के लिए जाएं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज Titan 5 कोड, बिकॉज इफ यू विल यूज Titan 5 कोड you will be able to avail additional discount there. Moving further, CLAT 2025 प्रीमियम कैप्सूल जो है, अब प्रीमियम कैप्सूल में आपको ये नोट्स रिवैम्प जो है, यदि आपको नहीं चाहिए, आपको लग रहा है कि स्पेशल क्लास पढ़ के और मैं नोट्स लेना चाहता हूं, तो सिर्फ नोट्स लेना है तो प्रीमियम कैप्सूल एक ऑप्शन है आपके पास। इसमें यू विल गेट द प्रिंटेड नोट्स, यू विल गेट अ पैक ऑफ 50 मॉक टेस्ट। 50 मॉक्स का भी बाइफर्केशन क्या है कि 40 मॉक्स आपको क्लैट के मिलेंगे, 6 मॉक्स आपको एलेट के मिलेंगे एंड 4 मॉक्स आपको ओलेट के मिलेंगे अलॉन्ग विद दी हार्ड कॉपी ऑफ ऑल द कंटेंट। ठीक है, मूविंग फर्दर, ये एक स्टैंडर्ड कैप्सूल है। तो स्टैंडर्ड कैप्सूल में व्हाट यू विल गेट डिजिटल नोट्स। यहां पर आपको बुक्स हार्ड कॉपी में नहीं मिलेंगी, आपको डिजिटल नोट्स मिलेंगे एंड पैक ऑफ 50 मॉक टेस्ट। ये 50 मॉक टेस्ट भी आपको ऑनलाइन मिलेंगे यहां पर। अगेन 40 क्लैट, 6 एलेट एंड 4 ओलेट्स, और आप प्राइस खुद से देख सकते हैं। ठीक है, मूविंग फर्दर, हमारे पास कुछ बैचेस हैं। लीगल मैवरिक्स बैच है, ये 27 ऑफ मार्च को स्टार्ट हुआ है, क्लैट, MSCT, एलेट और अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट वन, द टाइटन्स। फाइनली वी हैव कम अप विद द टाइटन्स एंड वी आर स्टार्टिंग विद दिस बैच on 11th of April. ठीक है, तो the first class is scheduled for 11th of April. So 480 plus live sessions, 50 plus mock test series. ठीक है, आपको सारा का सारा मैंने कल ऑलरेडी एक वीडियो लिया था, उसमें बताया था। सौमिल सर विल टेक केयर ऑफ लीगल, मनु सर विल टेक केयर ऑफ करंट अफेयर्स एंड जीके, आई विल टेक केयर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग मींस क्रिटिकल रीजनिंग, वैष्णवी मैम विल टीच यू इंग्लिश एंड पूजा मैम विल टीच यू क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। आफ्टर दिस A very big thank you to all of you. आपने ये सेशन देखा और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। Every time I come up with this session, again I will tell you the timing of the special class where we will discuss the rest of the passages of that particular assignment. So I'll see you tomorrow at 10:30 AM. Till then, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ढेर सारा प्रसन्न रहिए और ढेर सारी पढ़ाई कीजिए। Happy learning. Thank you.